I will going to show you displacement reaction. Okay, so this is copper sulfate solution and this is silver nitrate solution. Originally silver nitrate is transparent solution, copper sulfate is blue in color. Okay, I am going to add iron to this copper sulfate solution and zinc metal to this conical flask. Okay, and copper metal to silver nitrate. Okay, so we will see after 20 to 25 minutes displacement reaction, how displacement occurs and which metal displaces to other element. Okay, so we know that most reactive element displaces the least reactive element from their compounds. Okay, so we will meet after 20 to 25 minutes. Okay. Let me check the changes. Okay, this is original copper sulfate solution. We will store this beginning the experiment for reference. Okay, so actually में copper sulfate का यही color होना चाहिए था यदि change नहीं हुआ है. Okay, so in displacement reaction, highly reactive metal displaces the least reactive metal. Okay, so in this copper sulfate solution and iron nail metal. Okay, so I immersed iron nail into this. Let's see what happened. Okay, in the beginning ये nail ऐसी थी. Okay, so see the brown color of this nail, this is copper. Okay, so आयरन ने कॉपर को कॉपर सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, मीन्स कॉपर आयंस डिपॉजिटेड एट दिस आयरन मेटल नेल. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन, displacement of copper by iron. Okay, it means iron is more reactive than copper. Okay, let's see second example. I added zinc metal into copper sulfate solution. The color of copper sulfate is little bit changed. So see, zinc metal originally having this texture or this luster, and after that you can see clearly brown deposition occurs. Okay, so this brown deposition is copper. So from copper sulfate solution zinc displaces copper, है ना, और the reactivity of zinc is higher than copper. Okay, इससे आप ये कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि हमेशा कॉपर को ही दूसरे मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं. ओके, सी दिस एग्जाम्पल. ओके, इनिशियली you have seen silver nitrate is colorless solution. Okay, so after some times when we put copper metal into it, so color of solution is changed. Okay, so copper remains, see on the surface of copper, copper beginning में ऐसा था, अब copper का कलर देखिए. सिल्वर एक्चुअल में ये हल्का सा ग्रेइश रहता है और शाइन करता है. आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कॉपर के स्ट्रिप पर कॉपर की जो फिलिंग है उस पर सिल्वर डिपॉजिट हो गया है. ओके, हम इसे यदि 2 और 3 आवर्स के लिए छोड़ देंगे तो ये ब्लू कलर का होने लगेगा. वाई? बिकॉज कॉपर इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका जो ये ग्रेइश या ब्लैकिश कलर आ रहा है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एटम. ओके, सो ऑन कॉपर फिलिंग silver is deposited as well as this, so silver is also present in the aqueous solution. Okay, not in dissolved form.
डिजॉल्व फॉर्म में सिल्वर मेटल नहीं होगा, मेटल कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होते, वो उसमें ऐसे ही इमर्स्ड पड़े हुए हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर बाय कॉपर, इट मीन्स हमेशा कॉपर रिएक्टिव, हमेशा कॉपर कम रिएक्टिव हो ऐसा नहीं है। सो वी विल कंपेयर द रिएक्टिविटी हियर। Fe is more reactive than copper. In this case, zinc is more reactive than copper, but here copper is more reactive than silver. So we have seen three combinations for displacement reaction. Okay. Uses of common metals: iron, railing, pipes, tanks, chain, wires, steel. स्टील भी एक एलॉय है, तो स्टील बनाने में आयरन के साथ में हमें कार्बन या दूसरी मेटल्स भी ऐड करना पड़ते हैं, मिक्स करने पड़ते हैं। सो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील इज आयरन। बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, सिलेंडर बनाने में, एलॉय फॉर्मेशन में, तो आयरन का ये यूज है। कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर एंड अप्लायंसेस, कॉपर के वायर जो रहते हैं आपने सबने देखा होगा, आपके घरों में होंगे। सो कॉपर के वायर्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनते हैं, यूटेंसिल्स भी होते हैं और एलॉय बनाने में भी काम आते हैं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एलॉय। क्या होते हैं एलॉय, ये अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। जिंक, जिंक ओवरहेड केबल्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में और गैल्वेनाइजेशन में। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन के ऑब्जेक्ट पर, आर्टिकल के ऊपर एक जिंक की लेयर, एक कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आयरन में रस्टिंग नहीं होती है, कोरोजन। हमने मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा हुआ था, तो मेटल की प्रॉपर्टीज में कि कोरोजन क्या होता है, और आपके डिटेल में है, लेकिन वो चैप्टर के एंडिंग में है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। गैल्वेनाइजेशन मीन्स जिंक को हम आयरन के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, तो जिंक का यूज हुआ। लेड, इलेक्ट्रोड्स बनाने में, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, बैटरी के अंदर जो आप रॉड जैसी देखते हो ना चीज, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स होती हैं, तो वो लेड की भी बनती हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स की जो कार वगैरह की बैटरी होती है ना, उसमें लेड क्या है, इलेक्ट्रोड का काम करता है। सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी बनाने के काम आता है, प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनती है, तो प्लेटिनम इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म मेक ज्वेलरी। एंड इलेक्ट्रोड्स में भी आप ये देखेंगे आगे की क्लासेस में, इलेक्ट्रोड में भी, मतलब इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं वायर से, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो उससे भी करंट फ्लो होता है। ओके, और प्रीवियसली वी डिस्कस दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन यूज मेटल्स एज इलेक्ट्रोड। एंड निकिल, निकिल से भी हम एलॉय बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील वगैरह इन सब में क्या होता है, निकिल भी मिलता है। Chemical properties of non-metals. Chemical properties of non-metals. So first, reaction with oxygen. Reaction with oxygen. So non-metals react with oxygen and they form oxides. For example, sulfur, when react with oxygen, it will form sulfur dioxide. Carbon react with oxygen, so it will form carbon dioxide. Nitrogen, nitrogen N2 react with oxygen and they form NO2. Hydrogen, on giving condition, normally it can't react with oxygen. At room temperature, hydrogen does not react with oxygen. But when we provide electricity of this mixture, so it will produce water. ठीक है, so non-metals जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है? The oxides of non-metal are acidic in nature. Okay, oxides of non-metals are acidic in nature. In the case of metals, so metal oxides are basic in nature and
Non-metal oxides are acidic in nature. All these are acidic. Okay? ये acidic oxides हैं. ये non-metal के oxide है और ये acidic होते हैं. Clear हुआ? तो ये कैसे पता चला ये acidic होंगे? When you dissolve sulfur dioxide, suppose you want to dissolve sulfur dioxide. SO2 क्या है? SO2 is sulfur dioxide. If you dissolve sulfur dioxide in water, so it will produce H2SO3. This is sulfurous acid. इसका नाम ही है acid. Clear है? So sulfur dioxide are acidic in nature. So non-metal oxides are acidic in nature. Clear? Next. Reaction with oxygen is covered, but non-metals do not react with acids, water and alkalis. ये एसिड से, वाटर से और अल्कली से रिएक्ट नहीं करती. Do not react with acids, bases and water. Okay? एसिड, बेस और वाटर से रिएक्शन नहीं करते नॉन मेटल्स. सो इसीलिए तो जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मतलब उनको ऐसा एक्सपोज नहीं रख सकते हैं कि एयर में डायरेक्ट रख दिया हमने, तो उसे क्या करते हैं, इसीलिए तो जैसे फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव. ठीक है? सो इट विल केप्ट इन वाटर. इसको हम पानी में इमर्स्ड करके रखते हैं. तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फॉस्फोरस तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हम उसे पानी में क्यों पानी में हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ है? क्या वो पानी से रिएक्शन नहीं करता? एग्जैक्टली, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है ना, इसीलिए हमने उसको वाटर में रखा हुआ है. क्लियर है? सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, बेसेस एंड वाटर एंड दे ओनली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. सो दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, और ये ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. क्लियर है? यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स. नाइट्रोजन टू प्रिजर्व पैक्ड फूड. जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट आते हैं ना, आप उसमें देखते हो ना कुछ फूले हुए रहते हैं. वो क्यों? क्योंकि उसमें एयर भरी रहती है. अपन ऐसा सोचते हैं, बट उसमें एयर नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है. ठीक है? तो उस नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उससे प्रेशर, बाहर के प्रेशर से उस कुरकुरे को या चिप्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अंदर वो फिल है. ठीक है? तो वो उसके अंदर एक प्रेशर है उस पैकेट के अंदर, तो बाहर से कोई भी जर्क लगेगा तो सेफ रहेगा हमारा चिप्स. ठीक है? इन बल्ब्स में भी फिल करते हैं और फर्टिलाइजर में भी यूज होता है. जैसे यूरिया, आपने सुना ना, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, तो उसमें नाइट्रोजन होता है. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है. ठीक है? दो इट इज नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर. ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जो कंडक्टर होता है, तो हम उसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं. एंड पेंसिल्स में ग्रेफाइट यूज होता है, आप सभी यूज करते हो. पेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है. आयोडीन आपने सुना होगा ना, कहीं कोई बॉन्ड हो गया, कोई घाव हो गया, उसको साफ करते हैं. एक थोड़ा सा ब्राउन कलर की, येलोइश ब्राउन कलर की एक लिक्विड रहता है, उससे वो नर्स या आपके बॉन्ड को, आपके जो घाव को साफ करते हैं. वो क्या है? वो टिंचर आयोडीन, आपने सुना होगा. ओके, सो आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. उसको साफ करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है. फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स में काम आता है. मैच बॉक्स, मैचिंग स्टिक में जो आप माचिस देखते हो ना, उसमें फॉस्फोरस रहता है. ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका सल्फर रबर इंडस्ट्री में यूज होता है. स्किन ऑइंटमेंट में भी यूज करते हैं सल्फर को. सोफ्रामाइसिन वगैरह जो रहते हैं उन सब में, मतलब ये स्किन ऑइंटमेंट जितने भी होते हैं, मतलब वो भी एक तरह से एंटीसेप्टिक का ही काम करते हैं. ठीक है? उसके काम आता है मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर तो चाहिए है. सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है.
ठीक है, और क्रैकर्स में भी सल्फर यूज होता है, ठीक है। तो ऑल दीज द यूजेस ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स का तो नहीं, कुछ जो कॉमन है जनरली आप लोग देख पाते हो उनका ये यूज है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। Corrosion is the process by which the surface of metal gradually degraded or destructed. Okay, means unwanted eating of the metal surface due to the reaction of atmospheric air, moistures, sulfur oxides, nitrogen oxides, and carbon oxides. Okay, all these substances which are present in environment affect the surface of the metal and react with the surface of metal and form hydroxides, oxides, carbonates, sulfides. Okay, this is called corrosion. Clear है? So corrosion में जो metal की surface है, suppose this is iron object, this is iron object or silver object. ओके, सिल्वर हुआ, आयरन हुआ या कॉपर ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो उसकी जो सरफेस है जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कांटेक्ट में आती है, एक्सपोज होती है, तो अपर लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटर मोस्ट, सबसे ऊपर सुपीरियर लेयर जो होती है वो इन सब से रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे Fe H2O से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो वाटर लिखना इसमें जरूरी नहीं है, आप मॉइस्चर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट रिएक्ट टू फॉर्म Fe2O3। क्लियर है? इस तरह से आयरन ने अपने सरफेस पर एक ब्राउन कलर की, ये किस कलर की होती है? ब्राउन, ये रस्टिंग है। ओके, आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। मतलब हर मेटल के कोरोड फॉर्म को आप रस्टिंग नहीं कहेंगे, इट इज असाइन स्पेशली फॉर द आयरन। सो रस्टिंग इज द कोरोजन ऑफ आयरन। क्लियर? सो व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इट्स लेयर टर्न्स ब्राउन। आप उसको टच करके देखेंगे पाउडर जैसा निकलेगा ब्राउन कलर का, वो जंग का, रस्ट मम्मी लोग बोलते हैं, कोई बोलता है ना जंग लग गई है लोहे में, वही चीज है, ठीक है। एंड सिल्वर, सो ऑन एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर और एयर, सिल्वर टर्निश्ड इन डल कलर। मतलब इसका जो शाइनिंग थी, जो चमक थी सिल्वर की, उसकी तो चमक अलग ही होती है, वो डल पड़ने लगती है धीरे धीरे, और लास्ट में उसमें ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। आई विल शो यू इन एक्टिविटी और स्मॉल वीडियो आई मेड फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स, दे हैव कोरोडेड विद द एटमॉस्फेयर। सो सिल्वर, उसकी चमक, शाइनिंग थोड़ी थोड़ी डल होती है, लास्ट में वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ब्लैक कलर की क्यों हुई? तो सिल्वर में जो भी एटमॉस्फेयर में सल्फाइड है, इफ सल्फाइड or sulfur oxides present in atmosphere, so they react with the surface of silver and form silver sulfide which is black in color. Clear? So silver का क्या है? Ag उसका symbol है plus S, so they form Ag2S. Okay? सल्फर से ये रिएक्शन करके क्या बना देगा? S. अब ये S अकेला नहीं मिलेगा एटमॉस्फेयर में, एक्चुअल में ये जो S है ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो सिल्वर से रिएक्शन करेगा, वो सिल्वर से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S एंड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगी। बहुत स्लो प्रोसेस होती है कोरोजन, कई घंटे लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं इसमें। तो कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच द surface of some metals affected by the environment. Environment में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन,
मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये कुछ कुछ मेटल को कोरोड करते हैं। ठीक है, आप सबके लिए स्पेसिफिक होता है। कॉपर के केस में क्या होगा? कॉपर के केस में ये कॉपर की जो लेयर है सबसे पहले तो वो ब्लैक होने लगेगी। ठीक है, ब्लैक होने के बाद उसके सरफेस पर ग्रीनिश ब्लू डिपॉजिट होने लगते हैं। मतलब उसकी जो लेयर है वो धीरे धीरे कलर चेंज करती जाएगी। पहले तो वो ब्लैक होगी और ब्लैक होने के बाद फिर वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगेगी। तो ब्लूइश ग्रीन कलर का एक उस पे शेड आने लगेगा। तो ये क्या कॉपर का कोरोजन है? वो किस बात का है? वो कॉपर के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कॉपर में जो कोरोजन होता है वो हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। सिल्वर में सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में भी होता है और सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में भी होता है। आयरन में ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो ये सब क्या है? कोरोजन। तो कुछ मेटल्स के, सारे मेटल नहीं होते, जैसे आपका वो गोल्ड प्लेटिनम, ये कोरोड ही नहीं होते क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत इनर्ट है। तो जो रिएक्टिव हो सकते हैं या होते हैं वही तो कोरोड जल्दी होते हैं। सबसे ज्यादा कोरोजन आप डेली लाइफ में इसमें देखते हैं। ठीक है, किसमें? आयरन में। तभी तो हमें उसके प्रिवेंशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं कि हम क्या प्रिवेंशन लें जिससे कि हमारा आयरन उसमें प्रोटेक्टेड रहे। Students, now I am going to discuss about the corrosion. Okay, you have heard about rusting और रस्ट, वो जंग बोलते हैं जिसे ना, आयरन पे लोहे पे जो जंग लग जाती है वो क्या है? वो एक कोरोजन का टाइप ही है। क्लियर? सो व्हाट इज कोरोजन? द मेटल सरफेस is gradually destructed by the effect of air or environment. Okay, because in environment there are some gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, oxygen, and humidity is also present in air. Moisture means water molecule is also present. So by the effect of these substances, these compounds, these elements, metal surface, some of the metal surfaces are degraded, okay, affected like this. See, this is the actual color of silver is this. Okay, for a long time this container kept like this. Okay, so inner part of the container is somewhat protected by the inverted position. Okay, but the outer surface continuously contact with the atmosphere. Okay, so environmental condition affect the surface of this container and this is corroded. So this black color is due to the formation of silver oxide. क्लियर? ये सिल्वर ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई है, मतलब इसकी सरफेस से, सिल्वर की सरफेस से ऑक्सीजन है। अदरवाइज सिल्वर तो इस तरह का दिखना था। ठीक है, तो इसकी ये कोरोड हो गई है। ओके, तो कोरोड क्या है? मतलब अब वो सरफेस तो खराब ही हो गई है। ओके, हम इसे स्क्रब कर लेंगे या किसी केमिकल से रिएक्शन कराएंगे तो ये वापस से इस तरह से दिखने लगेगी, मतलब वो लेयर वहां से अलग हो जाएगी, बट उतना मेटल तो खराब हो गया, हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, एंड इन केस ऑफ नेल ऑल्सो, ये देखिए, ये नेल एक्चुअल में ऐसी थी। ओके, ये पैक रखी हुई थी। क्लियर है? तो बट इसको एटमॉस्फेयर में ऐसा ही ओपनली छोड़ दिया था, तो एक्सपोजर ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस इट बिकम्स रस्टेड। देखिए इसमें रस्ट लग गई है। सेम हियर, एक्चुअल में ये इस तरह का था, अब देखिए आप इसमें भी धीरे धीरे रस्टिंग स्टार्ट हो गई कुछ पार्ट्स में। ओके, और लॉन्ग टाइम यदि आप छोड़ देते हैं तो इस तरह से इसमें ये रस्टिंग हुई है। आप देख रहे हैं ना क्लियरली, ये रस्ट है, ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है वो रस्ट है। क्लियर है? तो रस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोरोजन। सो atmospheric condition destructed the metal surface. This phenomena is corrosion. Clear है? Same for copper also. Copper having greenish color, blue, black green, or somewhere it looks like greenish blue. Okay, layer on the surface of the copper metal. Okay, it is due to the formation of again
कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स की लेयर होती है कॉपर के ऊपर, वो थोड़ा सा ग्रीनिश दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कोरोड हो रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट तो ग्रीनिश दिखेगा, लेकिन कुछ कॉपर ब्लैक हो जाता है, वो ब्लैक क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, क्लियर है, लाइक सिल्वर ऑक्साइड। तो दिस इज द कोरोजन ऑफ मेटल। Prevention of corrosion. Prevention of corrosion. We already discussed that unwanted eating of metal. मतलब हम नहीं चाहते कि हमारा मेटल उससे रिएक्ट करे, लेकिन फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है, ये तो होना ही है। यदि आपने कोई भी मेटल एक्सपोज कर दिया तो उसमें ये कोरोजन तो होना है, तो हमारा नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें हम, इसलिए हम पहले ही प्रिकॉशन ले लें। तो हमारे पास कौन कौन से प्रिवेंशन मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, जो जनरल मेथड्स हैं हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, पेंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड, galvanization. Third, electroplating. And fourth is electroplating and alloying. Alloying. Clear? Painting, galvanization, electroplating and alloying. So painting. Now rainy season will going to be start now. So our parents, you have seen that your parents will take care about the protection of iron objects. आपके जो ग्रिल है या जो भी आयरन के गेट है, आपके घर में जो कुछ भी आयरन से रिलेटेड आप देखोगे आपके पेरेंट्स क्या करवा रहे हैं, बारिश शुरू होने के पहले उसे पेंट करवा रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि हम यदि उसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे तो क्या होगा, उनके आयरन का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन के, तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो बारिश शुरू होने के पहले जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा आएगा, उसके पहले वो क्या करते हैं, उस पर पेंट करवा लेते हैं। तो पेंट से क्या होगा, उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर आ जाएगी। वो लेयर क्या है, वाटरप्रूफ लेयर है। पेंट क्या होता है, वाटरप्रूफ होता है। तो और पूरा ढक दिया उसने, तो ना ही उसमें एयर जाएगी ना ही उसमें मॉइस्चर जाएगा, तो आयरन ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं होगा। सो फर्स्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज पेंटिंग द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, गैल्वेनाइजेशन। फॉर गैल्वेनाइजेशन वी यूज जिंक मेटल। ओके, जिंक मेटल। तो ड्यूरिंग द गैल्वेनाइजेशन अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड, हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को यूज कर रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं, उस पर जिंक की ऑक्साइड की कोट चढ़ जाती है, कोटिंग चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है। तो उसकी सरफेस पे इट्स सरफेस कोटेड विद जिंक ऑक्साइड लेयर। और वो क्या है, वो बहुत ज्यादा बचा लेती है किसको, अंदर छुपे बैठे हुए आयरन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो वो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो उस तक नहीं जा पाती है, और क्या हो जाएगा, एक लेयर से प्रोटेक्ट, मतलब वो बाहर एक प्रोटेक्शन की एक शील्ड बना देती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आयरन ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो हमारा वो सेफ रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। रिमेंबर वन थिंग, गैल्वेनाइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ जिंक यूज करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, somewhere we use galvanization through electroplating। मतलब हम कई बार ऐसा करते हैं कि यहां पर तो क्या, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बता देती हूं। ऑक्सीडेशन वो मेथड है जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो यही तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन उससे कंबाइन हो गई, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्लियर है।
सो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज होके जिंक ऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर लगा देता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, मतलब हमें करंट देना पड़ता है वहां, ठीक है। तो हम उस मेथड के थ्रू, जैसे ये आयरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हमें टिन की लेयर डिपॉजिट करनी है या निकिल की लेयर डिपॉजिट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसकी हमें लेयर चढ़ानी है, उसके एक रॉड लेते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए ये हमारे पास आयरन की रॉड है, ठीक है। हमें इस पर टिन की रॉड, टिन का कलर या टिन का डिपोजिशन करना है, टिन की रॉड है, ठीक है। अब हम यहाँ एक सोल्यूशन लेंगे और इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो होगा क्या, कैंसिल सुनना, हमने एक आयरन की रॉड ली है जिसके ऊपर हमें टिन की एक लेयर लगानी है। तो हम इन दोनों रॉड को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और एक सोल्यूशन, सॉल्ट के सोल्यूशन में हम उसे डिप कर देंगे, ठीक है। टिन का सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब आप ये समझ लीजिए, वो हायर क्लासेस में आपको डिटेल में जाएगा। तो अब हम करंट जैसे ही पास करेंगे तो होता क्या है, यहां से टिन निकल के इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगता है आयरन की रॉड पे, तो एक पतली सी लेयर आ जाएगी। इसको बोलते हैं, ये प्लेटिंग तो हो रही है, प्लेटिंग मतलब उसके ऊपर कवरिंग होना, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप इसमें टिन ले सकते हो, निकिल ले सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू भी हम आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे को भी। एक बात आपने शायद सुनी होगी अपनी मम्मा से कि कुछ लोग गोल्ड का पॉलिश करवा लेते हैं, है ना, सिल्वर के ज्वेलरी में गोल्ड का पॉलिश करवा लेते हैं। तो कैसे करवाते हो? ऐसे ही सिंपल, उन्होंने क्या किया, ये ले लिया सिल्वर का, सपोज उन्होंने एक ले लिए स्पून, एक स्पून ले लिया, ठीक है। ये क्या है? सिल्वर स्पून, सिल्वर की स्पून ले ली और यहां पर उन्होंने दूसरी रॉड क्या लिए? गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड की रॉड लिए। अब वो क्या करेंगे? करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इस रॉड में से गोल्ड निकल के इस पर डिपॉजिट होने लगेगा। तो चांदी की जो आपकी स्पून है वो सोने की दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के थ्रू आपने गोल्ड की लेयर्स पे लगा दी, इतनी सी बात। फोर्थ इज alloying. Alloying means to make or to prepare alloy. So what are alloys? Simple. When metal combined with or mixed with, sorry, when metal mixed with other metal or non-metals to form alloy. ओके, सो एलॉइंग में क्या करते हैं, जो एक मेटल है यदि हमने उसमें दूसरा मेटल या कुछ नॉन मेटल थोड़ा बहुत अमाउंट मिला दिया तो एलॉय बन जाता है। वो क्या है? मिक्सचर है। तो एलॉय क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका एलॉय इन डिटेल में, तो आप ये समझ लीजिए। तो एलॉइंग करने से हम उस मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बाय दिस वे ऑल द मेथड्स वी शुड यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। Next topic is alloy. Okay. What is alloy? सिंपल सी बात है, अभी हमने यही तो पढ़ा है, alloy, alloying करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज alloy. It is a mixture of, it is a homogeneous mixture of a metal with other metals or non-metals
is called alloy. Simple. It is a homogeneous mixture. बहुत ध्यान रखेंगे. होमोजेनियस आपको पहले पढ़ा चुके हैं. होमोजेनियस मिक्सचर तो किसी भी प्रोपोर्शन में बनते हैं. हम एक या एक से दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को जब हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर होता है. उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट नेसेसरी. ओके, सो this is the it is homogeneous mixture. Homogeneous means you can't check their constituent separately by seeing the alloy. For example, this is a gold bangle. ये gold का है, but ये pure gold नहीं है. So it has some amount of silver and zinc or copper also, but you can't check. Simple, आप ऐसे चेक देख के नहीं बता सकते हैं कि इसमें कॉपर कहाँ है, क्योंकि ये होमोजेनस है. होमोजेनस मतलब हर एक पार्ट में सेम कंपोजिशन, हर एक पार्ट में सेम कंपोजिशन होमोजेनस का होता है. ठीक है. सो ऑफ अ मेटल विथ, तो इसमें मेटल में मेटल मिले हुए हैं. कई बार ऐसा होता है मेटल में हमें नॉन मेटल भी मिक्स करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टील. स्टील क्या है? बेसिकली स्टील क्या है? आयरन. आयरन के साथ में हम कार्बन मिला देते हैं. ठीक है. आयरन के साथ में हम क्रोमियम मिला देते हैं. आयरन के साथ में हम निकेल मिला देते हैं. तो ये अलग अलग वैरायटी के स्टील बनते हैं. ठीक है. ये अलग अलग वैरायटी के स्टील होते हैं. तो इन सब में हमने मिक्सचर बनाया है होमोजेनस. अब आप ये नहीं कह सकते हो, आप स्टील की प्लेट लेते हो, आप उसकी स्टील की प्लेट पे बता दीजिए कि उसमें आयरन कहाँ कहाँ है और दूसरा मेटल कहाँ है. नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि वो होमोजेनस हो गया है. तो एलॉय बनाते कैसे हैं? जिस मेटल में मिक्स करना है उस मेटल को मेल्ट कर देते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. उसी में हॉट कंडीशन में दूसरे मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर देते हैं, वो भी मोल्टन स्टेट में रहते हैं. तो दो लिक्विड आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. ठीक. अब वो तो हॉट थे, अब हमने उसे टेम्परेचर डाउन किया तो वो सॉलिड बन गया, सब मिक्स हो गया, सब जगह एक साथ. तो पूरा जो कंटेंट बनेगा वो सेम बनेगा. क्लियर? तो इस तरह से हम एलॉय बनाते हैं. तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर एलॉय. क्लियर? Because some metals corrode automatically. Okay, so we want to prevent from corrosion of that metal, so we prepare alloy. If steel, आपने देखा होगा स्टील के उसमें तो कभी आपके आयरन की नेल में या ग्रिल में तो रस्ट लग गई, लेकिन स्टील के बर्तन में नहीं होती, जबकि उसमें भी आयरन है. उसको तो अपन पेंट नहीं करते ना, तो उसमें तो रस्टिंग नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका हमने क्या बना दिया? आयरन का स्टील बना दिया, एलॉय बना दिया. तो एलॉय की प्रॉपर्टीज मेटल की प्रॉपर्टीज से डिफर करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं. तो जब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी. क्लियर?